Okay, so now there is one student. Okay, just please put your first name and last name. Otherwise, I am not going to add for further sessions. I don't know. There is one student, 1K, 1F, K8, Q. Please rename yourself. I will admit you. Please rename yourself. See, we have to record your attendance also. Okay, so if you don't put your name, proper first name and last name, it's difficult to give attendance for you. Okay. So as we decided in last lecture, okay, before starting of any unit, first we will cover the prerequisites of that unit, okay, that particular unit. Okay. So initially our approach is first of all you have to complete unit 1 and unit 2. Okay. And after that, for remaining 4 units, okay, sequence may be different. Okay, maybe we'll start statistic probability first, and later on unit 5, 6, and so on. But initially we have to complete syllabus for INSEM, that is unit 1 and unit 2. And if you see this unit 1 and unit 2, there is no prerequisites for unit 2 actually, okay, because that unit is totally different. It's a numerical methods, okay, and no need any previous knowledge. But for unit 1, okay, you need to have some basic knowledge. Okay, so that I will discuss in this lecture today. So let's start with the prerequisites of unit 1 and unit 2. So first we will discuss the basic integration formulas. Maybe most of the students are aware about these formulas, okay, but I want to bound everything, okay, which integrations formulas you actually need in this topic. Okay, so I just sort out those formulas only. After that, we will see the hyperbolic functions. Okay, so this part is already there in M1, okay, in the unit complex number, but for this pattern, 2019 pattern, complex number unit was not there. Okay, so separately we have to learn this topic, which is hyperbolic function. It's a complex part actually. So we just need the basic definitions about hyperbolic functions. We will not go in detail. And the third part is roots of the polynomial. Okay, ये भी आपने already 9th 10th standard में learn किया है. Okay, but here in this topic you need to find the roots of polynomial of degree 4, polynomial of degree 5, polynomial of degree 7. Okay, because on scientific calculator you can find the roots of all the polynomial up to degree 3, degree 1, degree 2, degree 3 का सारा calculation आपका calc में हो जाएगा. But उसके आगे अगर आपको polynomial के roots calculate करने, वो कैसे करने, ये भी आज आपको आज के लेक्चर से समझ में आ जाएगा. So let's start with the basic integrations formula. Okay, से जितना भी पार्ट अभी मैं कवर कर रहा हूँ ना, वो डे बाय डे ही रीड करते जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे जाकर फिर से रीड नहीं करनी. एक ही बार आप परफेक्ट करो, क्योंकि एक बार आपका इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे मुझे डिफिकल्टी नहीं आएगी. सी यूनिट 1 इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, बिकॉज़ वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आपने ऑलरेडी M2 में लर्न किया कि सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो लास्ट स्टेप आपके हमेशा इंटीग्रेशन में ही जाने वाले हैं, बिकॉज़ डेरिवेटिव को अगर आपको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है सो इन बिटवीन यू मस्ट टेक द इंटीग्रेशन. तो इसलिए बेसिक सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आपने 12th में लर्न किए थे, या आपने ऑलरेडी M1 M2 के टाइम पे भी ये सारे फॉर्मूले देखे थे, तो एक बार अच्छे से आप ये प्रिपेयर करो, क्योंकि एक बार आपने ये रेडी किया तो आगे जाकर कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So that is the integration of x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1, integration of 1 upon x plus b, like 1 upon x, which is log x. And in case of integration, okay, chain rule आपका क्या होता है कि आपको डेरिवेटिव से डिवाइड करना है. So the 1 upon x का इंटीग्रेशन log of x plus b and divide this by derivative of bracket term, which is x plus b का derivative, which is a. e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x upon log a. Okay, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, tan x का log of sec x, cot x का log of sin x, sec x का log of sec x plus tan x, cosec x का log of cosec x minus cot x, sec square x का tan x, cosec square x का minus cot x,
sec x tan x का sec x, cosec x cot x का minus cosec x. ओके, जनरली अगर आपको अगर साइन में कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पे माइनस आता है कहाँ पे प्लस आता है, अब देखो इंटीग्रेशन में ज्यादातर केस में जहाँ पे पहले c आता है माइनस cos x ये नेगेटिव साइन का है, माइनस cot x ये नेगेटिव साइन का है, तो जनरली ये इंटीग्रेशन आपके नेगेटिव आते हैं. आप किसी भी अदर ट्रिक से आप ये चीजें याद रखो, बट परफेक्ट आपको आना चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या है, cot x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x cos x का इंटीग्रेशन क्या है. ये बेसिक चीज है, इसमें भी अभी भी कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, तो दिस इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट जिनका इंटीग्रेशन पार्ट वीक है, उनको एटलीस्ट ये फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये भी कंफ्यूजन फॉर्मूलेज है कि अंडर रूट आता है तो फॉर्मूला क्या बनता है और विदाउट अंडर रूट फॉर्मूला आपका क्या आ जाता है. So like 1 upon under root of a square minus x square where a is constant, so that integration has value sin inverse of x upon a. Okay, where x is the variable, a is the constant. 1 upon x square under root of x square minus a square का integration log of x plus under root of x square minus a square and x square plus a square का log of x plus under root of x square plus a square. Okay, so these three formulas are for under root and next three are for 1 upon a square plus x square. Okay, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. ज्यादातर केस में ये भी रिपीट होता है tan इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन. 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x. इसमें भी आपका कंफ्यूजन होता है कि ऊपर प्लस आता है या माइनस आता है. ओके, तो ये सारी चीज आपको किसी ना किसी लॉजिक से किसी ना किसी ट्रिक से याद रखनी है. ओके, ऐसे रैंडमली अगर आप मतलब अभी के लिए प्रिपेयर करोगे तो हार्डली 1 या 2 दिन तक ही आपको याद रहेगा. ओके, कोई ना कोई तो लॉजिक आप उसके पीछे रखो. ये कभी भी मतलब इन बिटवीन सेमेस्टर भी अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्विकली समझ में आना चाहिए कि कैसे उसको लिखना है. ठीक है, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज 1 by 2a log of x minus a upon x plus a. And now the we'll continue that table. Next is integration of under root of a square minus x square, integration of under root of a square plus x square. Okay, I'm not going in detail. Yes, PPT आपसे मैं share करने वाला हूँ immediately. Okay, so you just go through all these formulas. Then integration of x square minus a square. After that, this is very important formula. Okay, integration of f dash of x. You don't need to take screenshot also. Okay, I will share the video also. I will share this PDF of this PPT also. Okay, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास रेडीमेड अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर करो. अभी के लिए बस मैं एक हाईलाइट जैसे आपको एक्सप्लेन करा कि क्या क्या चीजें आपको अभी यूनिट 1 में इमीडिएटली चाहिए. So integration of f dash of x upon f of x, this is very famous formula और m1 m2 के टाइम पे भी आपने ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज किया था. Okay, so this integration has value log of f of x plus c. Integration of f dash of x upon under root of f of x. Okay, so if derivative of denominator under root में जो भी पार्ट आता है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आ जाता है, in this case your integration is 2 under root of f of x. And now so these are the basic integrations formula. Okay, अगर आपको डिफिकल्ट भी जा रहा है तो आप किसी ना किसी लॉजिक से बस फॉर्मूला याद रखो, उनको अप्लाई कैसे करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैं एग्जांपल के टाइप पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, तो आपके साइड से मुझे ये फॉर्मूलाज परफेक्ट चाहिए. ओके, किसी को भी रैंडमली अगर मैं फॉर्मूला पूछता हूँ तो उसको परफेक्ट आना चाहिए. फिर उसके बाद मेरा वर्क आता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है. ओके, कैसे वो मतलब कौन से केस में f dash of x upon f of x का फॉर्मूला आने वाला है, कौन से केस में f dash of x upon root of f of x का फॉर्मूला आने वाला है, तो वो बाद में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. And now next is by parts rule. Okay, so see there are two formulas for by parts. One is formula number 26 and second is formula number 30. ये दोनों by parts के formula. Okay, in formula number 26, this is your regular by parts formula where we need to use the ILAT rule or LIT rule. Okay, the integration of first function formula is like this: first function into integration of second minus integration of derivative of first multiplied by integration of second dx. Okay, so this is a very famous formula and you already learned this formula in your 12th standard. But here in first year you learn this generalized by parts rule. Okay, integration of u v dx. So this integration has value u v1. Okay, where v1 is the integration of v second function minus u dash. U dash is the derivative of first function. U dash v2. V2 is again integration of v1 plus u double dash v2 minus u triple dash v3 and so on. Simply क्या है इसमें जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उस फर्स्ट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है. अब देखो फर्स्ट टर्म u, आफ्टर दैट u dash, आफ्टर दैट u double dash, आफ्टर दैट u triple dash. जो आपका सेकंड फंक्शन है
उसका आपको इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन v1, सेकंड इंटीग्रेशन v2, सॉरी यहाँ पे नोटेशन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है, v3, v4 एंड सो ऑन। आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू हो जाएगा, सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कंटिन्यू हो जाएगा, एंड इन बिटवीन यू हैव टू गिव द अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन। ज्यादातर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जब भी बाय पार्ट्स का कोई इंटीग्रेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 का कुछ ज्यादा यूज, फॉर्मूला नंबर 29 का कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ठीक है मैंने ऐड किया। एंड 27 एंड 28 ये भी आपने फोरियर सीरीज के टाइम पे ज्यादातर क्वेश्चन में यूज किया था। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू ax sin ऑफ bx dx, इसका फॉर्मूला आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर आप इसको मैन्युअली ट्राई करोगे, अगर मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये इंटीग्रेशन आपका रिपीट होता जा रहा है, ओके, कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ओके, कुछ भी क्वेरी आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे पूछो, ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे लेक्चर डिस्टर्ब होता है तो उससे कुछ इशू नहीं है। So here integration of e raised to x sin bx dx is equal to e raised to x upon a square plus b square a into sin bx minus b into cos of bx। ओके, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी m1 m2 के टाइम पे यूज किया था फोरियर सीरीज के केस में। नेक्स्ट इज e raised to x integration of e raised to x cos of bx dx, okay, which has value e raised to x upon a square plus b square a cos of bx plus b sin of bx plus c। तो ये भी फॉर्मूला आपको किसी ना किसी लॉजिक से याद रखना होगा कि साइन क्या आता है, प्लस कहाँ पे, माइनस कहाँ पे, इनिशियल टर्म कौन सा है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस। ये आपने ऑलरेडी 12th में देखा था, अभी या फर्स्ट ईयर में भी देखा है, इसलिए ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं कर रहा, आपको मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ तो उससे आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, नाउ दिस फॉर्मूलेस आर न्यू फॉर यू, ओके, जिनका हमें अभी इमीडिएटली यूनिट 1 में यूज करना है। ओके, एक्चुअली एक यूनिट था आपको m1 में जो अभी 19 पैटर्न में नहीं था, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में ये सारे रिजल्ट थे आपको। ओके, सो द सीरीज एक्सपांशन ऑफ 1 upon 1 plus x, this is actually the series representation of this function 1 upon 1 plus x can be written as 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to 4। Here you can use the Taylor and Maclaurin theorem also if you want to represent any given function in terms of its series expansion। Okay, for example, how you find the series expansion of e raised to x, okay, आपने already learn किया था फर्स्ट ईयर में। How you find the series expansion of sin x, how you find the series expansion of cos x। A similar way, the series expansion of 1 upon 1 plus x is 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to 4 and so on, provided mod x is less than 1। Okay, वो ठीक है, आप याद रखो, नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा क्योंकि वो सारा अंडर कंडीशन ही आ जाता है। And next is the series expansion of 1 upon 1 minus x is 1 plus x square plus x cube plus x raised to 4 and so on। Okay, so these two are very important formulas। एक पर्टिकुलर रिजल्ट ही आने वाला है जिन रिजल्ट में यही दो फॉर्मूलाज आपको कंटिन्यूअसली यूज करने हैं। सो रिमेंबर दिस टू सीरीज एक्सपांशन। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलर एंड मैक्लॉरिन टॉपिक आप एक बार रेडी करो। ओके, दिस सीरीज एक्सपांशन ऑफ f of x एनी गिवन फंक्शन can be written as f of a plus x minus a into f dash of a plus x minus a square upon 2 factorial f double dash of a। वो जो एक फॉर्मूला था उससे सीरीज एक्सपांशन हमने कैलकुलेट की थी। ओके, या you can use the Maclaurin theorem where you need to find the series expansion about x or in power of x। Now next part is the partial fraction। ज्यादातर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन कुछ क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। ओके, जो आपके रेगुलर प्रोसेस है 12th की पार्शियल फ्रैक्शन की, ओके, वो अगर आप अभी स्किप भी करते हो तो भी चलेगा। अगर आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उस मेथड से भी जा सकते हो। ये एक अलग मेथड है, इसलिए बस यहाँ पे मैंने इसलिए टॉपिक मैंने बस ऐड किया है। ओके, अगर आपको इस मेथड से जाना तो आप इस मेथड से जाओ। अगर आपकी जो आपकी 12th की मेथड है अगर आप उससे ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उस मेथड से भी जा सकते हो, तो चॉइस आपकी। सो ये मेथड क्या है? सो हियर आई एक्सप्लेन दिस पार्शियल फ्रैक्शन ओनली फॉर लीनियर फैक्टर। ओके, लीनियर फैक्टर मींस व्हाट, आप देखो यहाँ पे नीचे जो फैक्टर आ रहे हैं x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ये तीनों फैक्टर की पावर 1 है। सो हियर आई जस्ट एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला ओनली फॉर लीनियर फैक्टर, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको लीनियर फैक्टर आने वाला है। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब फैक्टर ऑफ पावर 2, फैक्टर ऑफ पावर 3, उस केस में कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन आपको है नहीं ज्यादातर सिलेबस में। ठीक है, आपको ज्यादातर वर्कआउट करना होगा लीनियर फैक्टर के ऊपर, तो इसलिए ये भी फॉर्मूला आपका दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर लीनियर फैक्टर, सो रिमेंबर दिस। सो आपका 12 का अप्रोच क्या था? राइट डाउन दिस फंक्शन एज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस a प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर x माइनस b प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर व्हिच इज
x minus c. And after that, you have to do the cross multiplication. So capital A into x minus b, x minus c plus b into x minus c plus c into x minus a, x minus b. और फिर आप क्या करते हो, x इक्वल टू ए पुट करो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू बी पुट करो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू सी पुट करो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। सेम अप्रोच है, बस मैं डायरेक्ट फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देन ये जो रिजल्ट में दे रहा हूँ, ये रिजल्ट ये एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन है जो आपने 12th में देखा। ओके, तो अभी यहाँ पे मतलब इसके इसमें शॉर्टकट वे क्या है या फास्ट वे क्या है, जब भी आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आपका क्या है, ये अपॉन x माइनस है, एक नीचे फैक्टर कौन सा आता है आपका x माइनस है। तो जब भी आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक के नीचे जो भी फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर आप लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f ऑफ x अपॉन x माइनस है, x माइनस b, x माइनस c। एक नीचे कौन सा फैक्टर था, x माइनस है, उसको डिलीट करो यहाँ से। सो यू विल गेट f ऑफ x अपॉन x माइनस b एंड x माइनस c। नाउ कैलकुलेट दिस होल वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। मतलब ये फैक्टर आपका कब जीरो होता है, when this factor is zero, when x is equal to a, या you can see the root of x minus a is x equal to a। ठीक है, तो x minus a फैक्टर आपका जीरो कब होने वाला है, when I put x is equal to a। तो कैलकुलेट करो ये वैल्यू फॉर x is equal to a। नहीं समझ में आ रहा है, एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल फॉर फैक्टर b, ओके, b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, b के नीचे कौन सा फैक्टर है, x minus b। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से x minus b फैक्टर डिलीट करो, you will get f of x upon x minus a, x minus c। और ये वैल्यू आपको कौन से केस में कैलकुलेट करनी है, फॉर x इज इक्वल टू b, फॉर x इज इक्वल टू। सिमिलरली फॉर c के नीचे फैक्टर आता है x माइनस c, तो उसको डिलीट करो, you will get f of x upon x minus a, x minus b एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। ये फास्ट वे होता है क्योंकि कभी कभी आपको a और b मतलब ये ओरली भी हो जाता है, इतना क्विक कैलकुलेशन। ठीक है, ये चॉइस आपकी, अगर आप 12th के मेथड से कंफर्टेबल हो तो उससे करो, या अगर आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। So this is all about the series expansion and partial fraction। मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। And now the next important part is hyperbolic functions। Okay, you don't know anything about the hyperbolic function क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक ही आपको नहीं था। Okay, इसलिए कुछ ज्यादा इन डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें बस हाइपरबोलिक के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है। कभी कभी इंटीग्रेशन में आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, कभी कभी इसे एक स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन का। ये सारी चीजें आपको आगे रहेगी M3 में, इसलिए बस हम फॉर्मूलाज ओरिएंटेड ये टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, इन डिटेल में जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज, सो रिमेंबर हाइपरबोलिक फंक्शन मींस व्हाट, यू जस्ट नीड टू ऐड h। sin x ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक फंक्शन आपका आता है sin hx। we read it as sin hyperbolic x। similarly cos x ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, and the corresponding hyperbolic function is cos hyperbolic x। ठीक है, cos hx। and now how you define this sin hyperbolic x function? because the sin hyperbolic x function has value e raised to x minus e raised to minus x upon 2, where x is real number। I repeat one more time, this is very important definition। okay, the value of sin hyperbolic x is e raised to x minus e raised to minus x by 2। Similarly, the value of cos hyperbolic x is e raised to x plus e raised to minus x by 2। So the average value of e raised to x and e raised to minus x, that is nothing but cos hyperbolic x, sin hyperbolic x is e raised to x minus e raised to minus x by 2। Okay. If you know these two formulas, you can find the sin hyperbolic of 0, sin hyperbolic of 90, sin hyperbolic of say pi, sin hyperbolic of 2 pi, 2 pi I, कोई भी वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। And otherwise next formulas are very similar to your regular trigonometric formulas, like say tan hyperbolic x is sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x। तो अगर आपको उसके एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे sin hyperbolic x की वैल्यू पुट करो, which is e raised to x minus e raised to minus x upon 2 divided by cos hyperbolic x की वैल्यू पुट करो, e raised to x plus e raised to minus x by 2। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा and you will get e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x। इसलिए आगे के केस में मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दिया, जब जस्ट यू रिमेंबर द corresponding trigonometric formula, then and from that only you can find the remaining values also। So the value of tan hyperbolic x is sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x। cot hyperbolic x is exactly reverse, cos hyperbolic x upon sin hyperbolic x। cosec hyperbolic x is 1 upon sin hyperbolic x। sec hyperbolic x is 1 upon cos hyperbolic x। ये सारे फॉर्मूलाज आप पहले प्रिपेयर करो। And there is one more result related with your
ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंड द करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका रिजल्ट क्या आता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मिडल पे ये मैंने दिया है, cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is always equal to 1. And now remember the derivatives and integration. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन का पार्ट नहीं आता। जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन में साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है। हाइपरबोलिक में वो कंफ्यूजन नहीं है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। आगे के इसलिए नहीं दे क्योंकि ज्यादा कुछ यूज नहीं होने वाले, आप इतना भी याद रखते हो तो भी एनफ है। एंड सिमिलरली इफ यू सी द करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन, बस इनको ही रिवर्स करना है। यहाँ पे अभी डी बाई डी एक्स था, ये डी बाई डी एक्स राइट साइड में शिफ्ट करो, देन इट बिकम इंटीग्रेशन। सो द इंटीग्रेशन ऑफ cos hyperbolic x is sin hyperbolic x, integration of sin hyperbolic x is cos hyperbolic x, and integration of sec hyperbolic square x is equal to tan hyperbolic x। तो अभी आप देखो मैं सारी चीजें आपके लिए बाउंड कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट आपने ऑलरेडी लर्न किया है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मूलेज आपको चाहिए फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आपको है सिलेबस में, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केस में ये इंटीग्रेशन में आने वाला है। तो ये जो लास्ट टेबल मैंने दिया है, यही बेसिकली फॉर्मूलाज आपको आगे यूज करने, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर इज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ यू कैन say that our syllabus is starting now, okay। यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, okay, that is nothing but the roots of the polynomial, okay। and this whole unit 1 is totally depend on your roots, okay। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, उस पॉलिनोमियल का आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने वो रूट्स रॉन्गली कैलकुलेट किए, आपका टोटल आंसर रॉन्ग हो, ठीक है। मतलब यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है टिल द एंड, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको एक स्टेप में पहले रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट्स अगर आपके करेक्ट आ जाते हैं तो ही आपका आगे का कैलकुलेशन करेक्ट होगा। So you can see the importance of this easy part or the small topic, roots of the polynomial। क्योंकि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल से एक फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर वो सॉल्यूशन आपका करेक्ट आता है तो आपके आगे का कैलकुलेशन सारा करेक्ट होगा, ठीक है। सो वी विल सी दिस पार्ट वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद डिग्री 1। डिग्री 1 की पॉलिनोमियल आपको कैसे दिखाई देगी, x + b = 0। डिग्री 1 मींस x की पावर आप देखो 1 है। So any polynomial of degree 1 can be written as x + b = 0। और उसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x = -b by a। अगर ये वैल्यू मैं वहां पे पुट करता हूं, विल गेट LHS = RHS। सो x = -b by a एक्चुअली द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो डिग्री 1 में कोई डिफिकल्टी नहीं है कैलकुलेट करने में, ओके। व्हाट अबाउट डिग्री 2? सो एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन बी रिटन एज x² + bx + c = 0। Already familiar with this, we call it as quadratic polynomial, and in this case your roots are x = -b plus or minus √b² - 4ac/2। ये भी फेमस रिजल्ट है, आपको ऑलरेडी पता है, इससे आपको वो दोनों रूट्स मिल जाएंगे। So remember this formula। So this is all about degree 1 and degree 2। Now degree 3, okay। So any polynomial of degree 3 can be written as x³ + bx² + cx + d। But for degree 3 onwards, there is we don't have a direct result, like say जैसे degree 2 के लिए आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, एक्चुअली degree 3, degree 4, degree 5 के भी डायरेक्ट रिजल्ट है, बट वो जो रिजल्ट है वो इतने ट्रिवियल नहीं है याद रखने के लिए, ओके। इसलिए आपने जो 11th 12th के टाइम पे भी आपने जो लर्न किया था, एक्चुअली डिग्री 3 ऑनवर्ड्स सारा कैलकुलेशन आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किया था, ओके। सो हियर आल्सो टू फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल onwards, degree onwards 3, in this case we need to use the synthetic division method। ये मेथड क्या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। So to understand this method, let's take one simple example। Find the roots of the polynomial x³ - 7x - 6 = 0। इस पॉलिनोमियल के आपको रूट्स कैलकुलेट करने। सी अदर वे आपके पास हमेशा रहेगा, अप टू डिग्री 3 का सारा कैलकुलेशन कैल्सी में ही हो जाता है, ठीक है। लास्ट 10 मिनट्स आर देयर। सो अप टू डिग्री 3 का सारा कैलकुलेशन आपका कैल्सी में हो जाता है।
तो आप उसमें भी कर सकते हो, बट आपके पास क्योंकि डिग्री 4 ऑनवर्ड्स फिर आपको डिफिकल्ट होगा। डिग्री 4 का कैलकुलेशन आपका ईएक्स कैल्स में भी नहीं होता। आई थिंक ईएक्स जो एडवांस वर्जन है उसमें डिग्री 4 का कैलकुलेशन होता है। ओके, अदर सारे कैलसिस में डिग्री 3 तक की कैलकुलेशन आता है। ओके, सो वी क्विकली कवर दिस। सो सिंथेटिक डिवीजन की फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बाय ट्रायल एंड एरर आपको कैसे भी करके पहले एक रूट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एटलीस्ट वन रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि कैसे ट्राई करें, मतलब हाउ यू स्टार्ट टू फाइंड द एटलीस्ट वन रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए आप क्या करो, x = 0 पुट करके देखो, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रूट बन जाएगा, नहीं बन रहा है नाउ ट्राई +1 वैल्यू, ट्राई -1 वैल्यू, ट्राई +2 वैल्यू, -2 वैल्यू एंड सो ऑन। ओके, ज्यादातर इंटीजर वैल्यूज आप पहले ट्राई करो। अभी ये भी कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है, बट जो सिलेबस में हमें क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, जब भी आपको एक इनिशियल रूट कैलकुलेट करना है, ज्यादातर रूट्स यहाँ पे आपको इंटीजर में आने वाले, फ्रैक्शन रूट्स आपको नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए आप 0 से ट्राई करो, +or-1 से ट्राई करो, +or-2 से ट्राई करो, +or-3 से ट्राई करो, तो इनमें से किसी ना किसी एक केस में आपको रूट मिल ही जाएगा। इस केस में आप देखो, इन दिस केस इफ आई पुट x = -1, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, -1 क्यूब -1^3 -7 of -1 -6, इनका कैलकुलेशन आपका 0 ही आता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल x = -1 इज योर फर्स्ट रूट। तो ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सिंथेटिक डिवीजन में कि आपको कैसे भी करके एक रूट कैलकुलेट करना है। नाउ आफ्टर दैट कंसीडर वन टेबल, इस फॉर्म में आपको एक टेबल कंसीडर करना है, जो आपका इस टेबल में जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स आपको इन अ सीक्वेंस पहले यहाँ पे मेंशन करना है। इन अ सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम x³ का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, बट देयर इज नो टर्म फॉर x², तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0, सो हियर आई हैव टू कंसीडर 0। नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज -7, नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज -6। ओके, देन आपने स्टेप 1 में ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि आपका जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, x = -1, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कंसीडर करो। नाउ जो आपकी फर्स्ट एंट्री है 1, उसको एज इट इज आपको नीचे कंसीडर करना है। ठीक है, जो भी एंट्री यहाँ पे 2 आने दो, 7 आने दो, 9 आने दो, जो भी नंबर आता है एज इट इज उसको नीचे कैरी करो। नाउ जस्ट टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 एंड दिस 1, वो मल्टीप्लिकेशन आपका क्या था -1, वो यहाँ पे कंसीडर करो। फिर इन दोनों के एडिशन 0 एंड -1, आंसर क्या आने वाला है नीचे -1। अगेन -1 और आपका जो रूट था -1, उन दोनों का प्रोडक्ट वो आने वाला है +1, वो यहाँ पे कंसीडर करो। इन दोनों की एडिशन आएगी -6, तो यहाँ पे कंसीडर करो। अगेन टेक द प्रोडक्ट ऑफ -6 एंड -1, वो आने वाला है +6, एंड इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 0। सिंथेटिक डिवीजन में एंड में आपको 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आता है तो आपने इन बिटवीन कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। ठीक है, सो नाउ दिस गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने ऑलरेडी एक रूट कैलकुलेट किया था x = -1, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका फैक्टर क्या आने वाला है x + 1। ये आपको पहले ही पता है कि a अगर आपका रूट आता है तो x - a ये आपका फैक्टर होता है, तो x = -1 ये ऑलरेडी आपके पास एक रूट था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका फैक्टर क्या आने वाला है x + 1। और इनको कैसे लिखना है, सो टोटल 0 का हमेशा आप स्किप करो। सो नाउ वी हैव टोटल 3 एंट्रीज, 1 -1 एंड -6, so total there are 3 entries. It means you will get the polynomial of degree 2, one number less होता है। अगर आपके पास टोटल 3 नंबर्स आ रहे हैं, so जो polynomial आपको उसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाली है उस polynomial की डिग्री आ जाएगी 2। so these 3 numbers correspond to polynomial of degree 2। ये 1 as it is आ जाएगा x² के कोएफिशिएंट में, -1 as it is आ जाएगा x के कोएफिशिएंट में, और लास्ट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा कांस्टेंट equal to 0। और now this become the polynomial of degree 2, और polynomial of degree 2 के लिए आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, x = -b + or -√(b²- 4ac upon 2a, उससे फिर आप इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। In this way you will get all the roots of this given polynomial। ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने, अभी टाइम लिमिट है तो इसलिए मैं बस आपको शो कर रहा हूँ। आप ये सारा पार्ट आपका हो चुका है, तो इसलिए कुछ ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ओके, फॉर यूनिट 1, तो आपको मैं अभी इमीडिएटली पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। सो जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूला, d² - a² का फैक्टराइजेशन क्या होता है, d² + a² का फैक्टराइजेशन क्या होता है, एंड सो ऑन। वैसे बस एक लास्ट रिजल्ट है d⁴ + a⁴। ओके, ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने रीजन दिया है यहाँ पे नीचे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, उस टाइम पे ये मैं क्लियर करता हूँ। नाउ द लास्ट पार्ट
फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर इज, ठीक है, अभी तक आपने पॉलिनोमियल के रूट सिंथेटिक डिवीजन से मेथड से कैलकुलेट किए थे, बट डिग्री 4 डिग्री 5 ऑनवर्ड्स, ओके, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जिनमें आप सब्स्टिट्यूशन से भी क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल हियर आई कंसीडर एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, ओके। एग्जांपल 1 में आप देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल d raised to 4 plus 8 d square plus 16 is equal to 0, ओके। सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट करना है, या आपको कैसे समझ में आता है, आप देखो डी स्क्वायर कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी डी स्क्वायर मिल जाएगा, 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 ओके। तो जहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर आपको सारे टर्म्स में मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से मे भी सॉल्व हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे केसेस में वो सॉल्व होता है, बट ज्यादातर केस में अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है सारे टर्म्स में, तो वो कॉमन फैक्टर को आपको पुट करना है, और पुट करके आपको उसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट एट द एंड इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ, ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, मुझे डिग्री 2 में कन्वर्ट करनी है, सो टू डू दिस आई जस्ट पुट d स्क्वायर इक्वल टू x, ओके। आइडिया क्या था, आइडिया क्या थी मेरी, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल कि अगर मुझे रूट्स कैलकुलेट करते हो, मुझे सिंथेटिक डिवीजन से जाना होगा, वो लेंदी प्रोसेस है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट करता हूँ। डिग्री 2 में ये इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, d स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर for first term and second term. So just put d square equal to x. So this polynomial become now x square plus 8x plus 16 is equal to 0. इसके रूट्स कैलकुलेट करो, which is x plus 4, x plus 4. ये x plus 4 whole square ही है. And now replace x by its original value. तो x की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, d square plus 4, d square plus 4. Okay. Solve करो, put करो, you will get the corresponding roots are plus or minus 2i plus or minus 2. See, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अगर आपके ये रूट्स करेक्ट आते तो ये आगे का सारा आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको देता हूं। एंड सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस सेकंड एग्जांपल, अगेन पुट d square equal to x, you will get x square plus 10x plus 9 equal to 0. So its factorization is x plus 9, x plus 1. Replace x by its original value, solve करो, you will get the roots are plus or minus 3i and plus or minus I. Okay. Last 2 minutes are there. Any questions from your side? से अभी जूम की वजह से हमें थोड़ा टाइम लिमिट मिल रहा है, ओके, बट आगे मे बी जैसे कॉलेज के पास वो सॉफ्टवेयर आ जाता है तो फिर ये टाइम लिमिट का बाउंड चला जाता है, फिर हम इजीली सारी चीजें कवर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? हेलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, जो अभी लास्ट में जो एग्जांपल सॉल्व किए थे, हाँ, तो जो 4 वाले पॉलिनोमियल से उसमें सब क्या इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे? डिपेंड है अभी क्वेश्चन के ऊपर, मैं रियल रूट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ ना। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूँ, लाइक से d minus 1 सॉरी x minus 2, x minus 3, x minus 4, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उसके सारे रूट्स क्या आने वाले हैं, रियल। ओके सर। सो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बट यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल से जिनके रूट्स आपके रियल भी आते हैं और कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, okay? तो मिक्स होता है ये आपको मतलब यूनिट 1 में जो जो पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं। डिग्री 3 का कैलकुलेशन ज्यादातर आपको थ्योरी में डिग्री 2 डिग्री 3 के ही आते हैं, वो सारा कैलकुलेशन आपको कैलस में करना है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन डूइंग दैट कैलकुलेशन। डिग्री 2 डिग्री 3 का सारा कैलकुलेशन आप कैलस में करो, ओके। प्रॉब्लम क्या पे होगी डिग्री 4 ऑनवर्ड्स, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको मैंने एक्सप्लेन तो की है, ओके, बट आप देखोगे बाद में कि प्रैक्टिकली उस मेथड से जाना और उस मेथड से सारे रूट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता आपके पास। इसलिए कुछ जगह पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अभी लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिससे आपको क्विकली रूट समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, वो आपको जैसे यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको धीरे धीरे वो सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल के रूट्स कैलकुलेट करने हैं। हाँ, पीपीटी में आपको शेयर करने वाला हूँ, उसकी पीडीएफ आपको अभी इमीडिएटली